जय जयवंती महला नौवां। बीत जय बीत जय बीत जय बीत जय जन्म अकाज रे जन्म अकाज रे। बीत जय बीत जय बीत जय बीत जय। जन्म अकाज रे जन्म अकाज रे। बीत जय बीत जय बीत जय बीत जय। बीत जय बीत जय बीत जय बीत जय जन्म अकाज रे जन्म अकाज रे। बीत जय बीत जय बीत जय बीत जय। निस दिन सुन के पुराण निस दिन सुन के पुराण समझत नहरे अजान। निस दिन सुन के पुराण समझत नहरे अजान। काल तो पहुँच्यो कहाँ जह पाज रे। काल तो पहुँच्यो कहाँ जह पाज रे। बीत जय बीत जय बीत जय बीत
जन्म अकाज रे, जन्म अकाज रे, बीत जह बीत जह, हाँ बीत जह बीत जह। अस्थिर जो माने दे, सो तो तेरो होए खे। अस्थिर जो माने दे, सो तो तेरो होए खे। अस्थिर जो माने दे, सो तो तेरो होए है खे। अस्थिर जो माने दे, सो तो तेरो होए है खे। क्यों ना हर को नाम ले, मूर्ख नीलाज रे। क्यों ना हर को नाम ले, मूर्ख नीलाज रे। बीत जह बीत जह, बीत जह बीत जह। जन्म अकाज रे, जन्म अकाज रे, बीत जह बीत जह, बीत जह बीत जह। निस दिन सुन के पुराण, समझत नहरे अजान। रहाओ निस दिन सुन के पुराण, समझत काल तो पहुँचे आन। कहाँ जह पाज रे, रहाओ काल तो पहुँचे। कहाँ जह पाज रे, निस दिन सुन के पुराण, समझत नहरे अजान। काल तो पहुँचे कहाँ जह पाज रे। बीत जह बीत जह, बीत जह बीत जह। जन्म अकाज रे, जन्म अकाज रे, बीत
जह बीत जह बीत जह राम भगत ही आन छाड़ देते मन को मान। राम भगत ही आन छाड़ देते मन को मान। नानक जन ए है बखान जग में बिराज रे। नानक जन ए है बखान जग में बिराज रे। बीत जह बीत जह बीत जह बीत जह जन्म अकाज रे। जन्म अकाज रे। बीत जह बीत जह बीत जह बीत निस दिन सुन के पुराण समझत नहरे अजान। निस दिन समझत काल तो पहुँचे ओ कहाँ जह पाज रे। काल तो कहाँ जह पाज रे। बीत जह बीत जह बीत जह बीत जह जन्म अकाज रे। जन्म अकाज रे। बीत जह बीत जह बीत जह बीत जह बीत जह बीत जह। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 1352 ਭਾਵ 1352 ਅੰਕ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਜੈ ਜੈਵੰਤੀ ਮਹਿਲਾ 9ਵਾਂ ਜੈ ਜੈਵੰਤੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਾਣੀ, ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ
ਰੈਂਡਮਲੀ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਤੀਰਥ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਰਥ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਪਈ ਦੇਖੋਗੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਸੀ ਟੌਪਿਕ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੀਰਥ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੀਰਥ ਸਬਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਤੀਰਥ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅਸਲੀ ਤੀਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰ ਸਮਾਨ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਸ਼ਬਦ 'ਚੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲਸ, ਕਾਲਜਿਸ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮਸ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਛੁੱਟਦੇ ਪੁੱਛੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌਪਿਕ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂ, ਜੀ ਮੂੰਗੀ ਦਾਲ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪਗੜੀ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬੰਨ੍ਹਣਾ। ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕਦਮ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਖ ਆਸਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਛੇਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਲਾਈਕ ਜੰਪਿੰਗ ਮੰਕੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਡਾਲ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਡਾਲ 'ਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਫਲਿਕਰਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਫਲਿਕਰਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, यहाँ पर बिंदु पर ध्यान लगाओ, चौकड़ा लगाओ, कोई माला फेरो, कोई ध्यान करो और अपने मन को कंसनट्रेट करो। गुरु साहब कहते सी तेरा मन है इस तरह कंसनट्रेट नहीं होएगा। सिद्ध जोगी कहते सी मन को शून्य करो, ज़ीरो करो। गुरु साहब कहते सी यू आर ह्यूमन बीइंग, तू इंसान है, मन शून्य नहीं हो सकता। गुरु साहब कहते सी मन नू ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸ਼ੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਘੰਟੇ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਗੁਫਾ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਸੰਦਿਆਂ, ਖੇਲੰਦਿਆਂ, ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ, ਖਾਵੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਰਹਾਂ, ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਰਹਾਂ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਵੇਅਰ ਰਹਾਂ? ਅਲਰਟਨੈਸ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਤੂੰ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। मैं उस वेले सोच रहा कि रिश्वत ले लेते हैं, कोई देख तो रहा नहीं है, तो उस वेले मैं सतगुर की गल नूं इग्नोर कर दिता। मैं सतगुर की गल जिहड़ी निरंतर मैनूं सुननी सी उस तो मैं उसनूं डिटैच हो गया, मैं वो लिंक तोड़ दिता और मैं रिश्वत ले ली। इसनूं कहंदे ने कि मैं सतगुर दा नाद, सतगुर दा सुनेहा, सतगुर दा मैसेज नहीं सुनिया। जे मैं सतगुर दा मैसेज लगातार सुनता रवां
लगातार सुनने का मतलब है नहीं है मैं अभी दुकान पे सामान बेच रहा हूँ, तुम ठहरो, मैं सतगुरु की आवाज़ सुन रहा हूँ। इस तरह नहीं है। सतगुरु की आवाज़ सुनने का, निरंतर सुनने का जिहड़ा गुरमत का मैथड है उसनूं अनद नाद कहते हैं। उन्होंने जपजी च पढ़दे गुरमुख नादम, गुरु दे मुख तो, खखे नूं सियारी, गुरमुख खखे नूं सियारी, छोटी की मात्रा, गुरु दे मुख तो निकली हुई बात नूं नाद कहते हैं, आवाज़ कहते हैं, धुन कहते हैं। हमेशा धुन विच ध्यान रहना, धुन में ध्यान। भी मेरा गुरु कहता है पराया हक नहीं खाना चाहिए। मैं कित्थे खड़ा वां अपनी जिंदगी च और कोई मैनू गाल कटदा है, किसी ने मेरे को बुरा भला कहा, किसी ने मेरे को इंसल्टिंग लैंग्वेज यूज़ की, और उसी टाइम अगर मैंने उसको गाली दी, टिट फॉर टैट किया, जैसे को तैसा मैंने किया, तब मैं सतगुर दे नाद तो टुट गया। मैं निरंतर सतगुर दी आवाज़ नूं नहीं सुन रहा। सो सतगुर दी आवाज़ नूं निरंतर सुनन दा मतलब है वे अलर्ट, अवेयर। मनु सतगुर कह रहा है नो यू आर नॉट सपोज टू स्पीक लाइक दिस, इल लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी। दूजा भावें जितना मर्जी गालां कड्डे, दूजा भावें जितना मर्जी बुरा भला कहे, यू आर नॉट सपोज टू। सतगुर मनु कह रहा नानक फिक्के बोलिया तन मन फिक्का होए। दूजा पिया बोल रहा है जे तू दूजे दे कारण फिक्का बोलेगा तेरा तन मन फिक्का हो जाएगा। तन मन फिक्के दी की निशानियां होंदियां, सानू पता ही लगदा सी गल गल ते गालां कट जांदे आ। तन मन फिक्के दी की निशानी होंदी आ, दूजे ने कुछ बोलिया सानू बर्दाश्त ही नहीं होंदा। तन मन फिक्के की निशानी होंदी है असी उच्चा बोलते हैं। तन मन फिक्के की निशानी होंदी है असी दो दियां चार सुनाते हैं। सतगुरु मैनू सिखा रहा है हुंदे ताण जो रह नहीं ताना, तू निमाणा बन के रहना, तू नम्रता च रहना। दैट मीनस कि मैं सतगुरु का नाद निरंतर सुन रहा हाँ। गुरमत का और सिद्धा जोगियां का नाद का यही फर्क है। सिद्ध जोगी समझते थे चौकड़ा मार लो, आंखें बंद कर लो और यहाँ पर ध्यान टिकाओ और तुमको कोई नाद सुनाई देगा, कोई म्यूज़िक सुनाई देगा जो कोई बजा नहीं रहा है पर सुनाई देगा। वो अलबेलापन, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਹੈ। ਅਨਹਦ, ਅਨਇੰਟਰਪਟਿਡ, ਨੈਵਰ ਐਂਡਿੰਗ। ਉਹ ਨਾਦ ਮੀਨਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਬਾਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ तू जंपिंग मंकी वांगू इस बात से उस बात पर, उस बात से उस बात पर, उस बात से उस बात पर। असी काउंसलिंग करते हाँ, काउंसलिंग करन वेले साडे कोल कोई माँ धी भैन आ जाती है, वो अपनी फैमिली की प्रॉब्लम रखती है। उन्हें पहली प्रॉब्लम रखी मेरी सास से नहीं बनती है। असी उन्हें पूछा क्या प्रॉब्लम हुई है, नहीं उन्होंने अपने बेटे को भी अपने वश में किया हुआ है, सब्जेक्ट बदल गया। पहला गल कर रही सी वो सास से बनती नहीं है, फिर उन्हें हूँ ब्लेम बेटे ते सुट दिता। जदों असी बेटे की गल शुरू कर लगे उसने कहा मेरा ससुर भी उनसे मिला हुआ है। हूँ ससुर की गल शुरू कर लगे, नहीं बच्चे आजकल कहना नहीं मानते हैं, बच्चे टीवी देखते हैं। अच्छा वीर जी बताओ, बच्चे जब टीवी देखते रहते हैं आप बोलते हो गुस्सा नहीं करना चाहिए, मैं उनको गुस्सा करूँ कि ना करूँ। हूँ सारा सब्जेक्ट चौथी लाइन ते पहुँच गया, शुरू होया सी सास से नहीं बनती है। सानू समझ ही नहीं आती इनू असी किस तरह जवाब दईए, जबकि पूरी गुरबाणी साडी इस साइकी नू फिक्सअप करती है। सानू जे ये जांच आवे ए वाले जिहड़े शब्द ने ए किस संदर्भ विच, किस कॉन्टैक्सट विच ईच शब्द का टॉपिक है। तुहानू बाहर साडियां पुस्तकां मिलणगीਆਂ, जीवन जाच दा खजाना वॉल्यूम 1
ਵੋਲੀਅਮ 2 ਵੋਲੀਅਮ 3, ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਰਾਹ, 4 ਲਾਵਾਂ ਬੇਸਡ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 67, ਅਸੀਂ 67th ਨੰਬਰ ਸ਼ਬਦ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟੈਕਸਟ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ 67 ਦੇ ਬਦਲੇ 66 ਨੰਬਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 66 ਦੇ ਬਦਲੇ 65 ਨੰਬਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 65 ਤੋਂ करते 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 ਅਸੀਂ शब्द नंबर 1, इस टॉपिक के ऊपर गुरु नानक साहब ने क्या बात शुरू की, एक तो लैके 67 तक आते हैं, सानू काफ़ी रिडल खुलती जाती है भी ये टॉपिक क्या चल रहा है, आपे कंसनट्रेट करने की आदत बन जाती है, एक टॉपिक उसको समझना है और उसके बारे में बात करनी है। सो गुरु पातशाह ने बाणी की ਬਣਤਰ ਕੀਤੀ ਹੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈਬਿਟ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗਾਈਏ ਔਰ ਉਸ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੂਰੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ 10 ਸ਼ਬਦ ਗਾਈਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਹੋਣ, पता ही नहीं लगेगा कि कौन से कॉन्टेक्स्ट का कौन सा शब्द कैसे, और हर शब्द का कॉन्टेक्स्ट उहदे रहाओ तो पता लगता है। इस करके रहाओ शब्द का सेंट्रल आइडिया होता है, जो तक रहाओ नूं नहीं समझते हाँ तां तक साडे पल्ले शब्द पैंदा नहीं है। साध संगत जी, मैं ये गल्लां तुहाडे नाल साझ इस करके कर रहा क्योंकि जदों भी असी वर्ल्ड वाइड कित्थे जाते हाँ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਜਾते हैं पर कुछ समझ में नहीं आता। ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਕੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ, ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੁਝ ਸਮਝ में ही नहीं आता है। ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏ? मैं तो कोई अथॉरिटी नहीं हाँ, मेरे को कोई फाइनल वर्जन नहीं है कि मैं सारी दुनिया को समझाना है। ये तो मैं अपनी अथॉरिटी लवांगा जो मनु भुलेखा हो जाएगा कि मेरे को सब कुछ समझ में आ गया। साध संगत जी, असी भी समझ रहे हैं, समझद्या अपने प्रोग्राम का नाम तो 22 साल पहला असी रखिया जीवन जाच का खजाना, इंग्लिश विच द लिविंग ट्रेजर है। खजाना, इस खजाने नूं अपने जीवन के हर पल विच किवें टुकाना है, मनु किवें इहदे अनुसार जीना है। फर्ज करो शब्द आया फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, तो मैनू सीखना है कि मुझे अगर कोई बुरा करता है तो मेरे को क्रोध नहीं करना है। हाउ टू प्रैक्टिस दैट? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਫਿਸ ਬੌਸ ਐਮਪਲੋਈ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਸਿਨੈਰੀਓਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, नौकर ग्लास तोड़ देगा तो क्रोध चढ़ेगा, अगर नौकरानी काम करने लेट आएगी तो क्रोध चढ़ेगा। इस तरह करते हैं ना। अगर पति बार बार बोले जा रहा है, सास बोले जा रही है तो क्रोध चढ़ेगा, या अगर बहू रानी ज़्यादा ऊंचा ऊंचा बोले जा रही है तो अल्टीमेटली सास को क्रोध चढ़ेगा। असी सारे एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं और फिर गुरु पातशाह जी तुहाडे खजाने चो समझते हैं कि काम क्रोध काया को गल है, इससे शरीर खराब हो जाता है। क्रोध करने से मेरे को सिखाओ, मैंने क्रोध नहीं करना। काइंडली ग्रांट मी योर विस्डम, मुझे समझाओ कि मैं ऐसे मौके पर जब कभी भी मेरे जीवन में रोज़मर्रा जीवन में कितनी बारी ऐसे मेरा लोगों के साथ वास्ता पड़ता है और मुझे क्रोध करना पड़ जाता है, मुझे समझाओ वो वेले नूं किस तरह संभालना। जदों क्रोध करन दा दिल कीता, जदों उच्चा बोलन दा दिल कीता, जदों गाल कड्डन दा दिल कीता, जदों रिश्वत लेने का दिल किया, और वो वेला जदों मैं संभालिया ना, उन्होंने कहते ने वक्त है ऊपर लड़ मरे, उस वेले नूं कहते ने। और जे मैं उस वेले ना मरा तो मेरा वो वेला बन जाएगा अमृत वेला।
मर जाना मृत वेला, ना मरना अमृत वेला। जिस वेले मैनू मुसीबत पवे और उस वेले मैं उस मुसीबत तो हार के बांझ होके उससे मार खा के मात खा के मर जाऊं, शरीरक नहीं आत्मक तौर ते। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਜਿਤ ਵੇਲੇ ਵਿਸਰੈ मेरा स्वामी तित वेला मर जाए जियो मेरा। अंदर से मैं मर जाता हूँ, मेरे को ऐसी अक्ल दो कि मैं उस टाइम ना मरया करा। मर जाता हूँ मृत वेला, ना मर जावा अमृत वेला। दिस अमृत वेला आई हैव टू प्रैक्टिस 24 आवर्स। सो ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਹਾਉ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਹਾਉ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਰਹਾਉ ਮੀਨਸ ਪੌਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋ ਨਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੀਜੈ ਹੈ ਬੀਜੈ ਜਨਮ ਕਾਜਰੇ ਨਿਸ ਦਿਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁਰਾਨ ਸਮਝਤ न रह जान। तेरा जन्म बीत रहा है, जाया जा रहा है, दिन रात तू पुराण सुनता है, समझत ना रह जान। काल तो पहुँचियो आन, तेरा मरने का वेला आ गया, कहाँ जाए भाजरे। विश्राम दे के गुरु साहब कहते ने रहाओ अस्थिर जो मान्यो दे। इस तरह रहाओ विश्राम दे के गुरु साहब कहते हैं। नो नो नो, ਇਹ ਜਿਹੜਾ रहाओ मीन्स है पॉज। जो पिछली लाइन पढ़कर आए हो इसको बार बार पढ़ो। ये आज के शब्द का पिवटल पॉइंट है, ये आज के शब्द का सेंट्रल आइडिया है। तेरे आज की बीमारी को फिक्सअप करने के लिए एक मेन बात इसी में है। इसको रहाव बोलते हैं। रहाव मीन्स पॉज, विश्राम, रुको, बार बार इसको पढ़ के आओ। सो मनु रिटर्न मैसेज आया कि आफ्टर द प्रोग्राम हो सके तो 15-20 मिनट शब्द के क्वेश्चन आंसर लेने होंगे। अच्छा जी, फिर मैं कोशिश करदा कि असी शब्द थोड़ा जल्दी कनक्लूड कर लीए। तुहाडे इत्थे असी 2 तरीक शाम तक अहमदाबाद के अंदर डिफरेंट प्लेसिस ते प्रोग्राम करांगे। तुसी सब जगह आ सकते हो, लेकिन सानू आदत पई है असी एक शब्द 10-10 घंटे 5-5 घंटे 2-2 घंटे सैमीनार्स विच डिटेल विच विचारदे आ। साडे कोल टाइम ही टाइम है, सानू कोई भोग नहीं पाना। क्यों? क्योंकि यदि विचार का टाइम मिलेगा ही नहीं, कदे भी नहीं मिलेगा। तुसी देख लेना अपने जीवन में झात मार के देखना। ए हुण गुरुद्वारे का टाइम है, ए असी गुरुद्वारे जा रहे हैं। असी गुरुद्वारे गए हाँ, भाई साहब जी ने प्रबंधकों ने वक्त सिर भोग क्यों नहीं पाया? जल्दी जाना है। जिन्होंने जल्दी जाना है वो अपनी घड़ी देख रहे हैं, आसा दी वार दा भोग पाओ, हर जुग जुग भगत उपाया, हमने जाना है। किसी ने घर जाके नाश्ता बनाना है, किसी ने पति को टोरना है, किसी को स्कूल जाना है, किसी को ऑफिस जाना है। उस तो बाद असी कम्मां ते चले गए, फिर शामी आए, फिर शामी, बस इस तरह ही सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। करद्या करद्या साडी जिंदगी बीत जाती है। सानू शब्द विचार करन दा समा नहीं मिलता। मनु वो पति पत्नी का नाम भुल गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर दोनों PhD प्रोफैसरस, हसबैंड एंड वाइफ, और वो दोनों पढ़ाते सी। उन्हां दे सामने मैं छोटा जिहा भुपिंदर सिंह, वो मेरे प्रोग्राम ते आए। प्रोग्राम तो बाद उन्होंने दसिया असी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर दोनों प्रोफैसर हाँ। तो मैं क्या तुसी ते बहुत पढ़े हुए हो, मैं तो सिंपल जी सिविल इंजीनियरिंग की सी, नाउ आई एम नथिंग, अब तो मैं कुछ भी नहीं करता, सिर्फ ऐसे ही हम वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम करते हैं। उन्होंने मैनू पता की जवाब दिता? उन्होंने कहा PhD करने वास्ते भी 21 साल लग जाते हैं जिंदगी दे। असी PhD की, असी दुनिया भर दी किताबां पढ़ियां, पर यह वाली पढ़ाई नहीं की। असी ये पढ़ाई कदों करांगे? मत समझना कि पढ़ाई वाजे ते गा के हो गई, मत समझना कि पढ़ाई अखंड पाठ करन नाल हो गई, मत समझना कि गुरुद्वारे पैसे दे के अखंड पाठ करा के या खुला पाठ रखा के पढ़ाई हो गई,
मत समझना कि मैं सवेरे उठिया सी, मैं उठ के इशनान करके वाक लिया सी और मैं खुला पाठ रखा है, पढ़ाई हो गई। नो, इस तरह पढ़ाई नहीं होगी। पढ़ाई आई डोंट मीन लिटरली पढ़ना, पढ़ाई आई मीन उसनू समझ के अपने जीवन ते हर पल टुकाना। मेरे को कैसे जीना है इस पल। सो साध संगत जी, अज दा साडा शब्द दोबारा जैजावंती राग विच गुरु तेग बहादुर साहब का शब्द है और इस शब्द नूं 1352 अंक ते सुभायमान किया गया गुरु ग्रंथ साहिब विच। शब्द दे रहाओ च कहंदे ने, बीत जय है जन्म अकाजरे, निस दिन सुन के पुराण समझत न रे अजान, काल तो पहुँचियो आन कहाँ जय है पाजरे। रहाओ, तेरा जन्म जाया जा रहा है। असी कदी एक खोज की नहीं है मेरा जन्म कैसे जाया जा रहा है। नैवर। असी जदों लोकां नाल काउंसलिंग करते हैं असी सीखते हैं, असी सीखते हैं, सानू लोग समझा जाते हैं क्वेश्चन कर करके, जन्म जाया कैसे जा रहा है। एक भैन आई मेरे को आके मैनू कहती है, वीर जी मेरी उम्र इस वेले 50-52 के करीब हो गई है। मैं क्या, अच्छा, मैनू डिप्रैशन हो गया है। ओहो, फिर दवाइयाँ खाते हो? कहती हाँ, मैं डॉक्टर को जाती हाँ और डॉक्टर मैनू कहता आपको दवाई खानी पड़ेगी। मैं क्या, तुसी बाणी नहीं पढ़ते? कहती हाँ, मैं पाठ करती हाँ, सुखमनी साहब करती हाँ, जपजी साहब करती हाँ, कीर्तन भी सुनती हाँ। मैं क्या, अच्छा, समझ के करते हो? कहती नहीं। मैं क्या, तुसी बचपन तो कदी समझने की कोशिश की नहीं? हुण मनु लिस्ट सुना रही है, हम सब लोग अपने से रिलेट करेंगे। कहती पहला मैं बचपन ही छोटी सी, मनु घर वालों ने क्या, ये का खा गा है, ये ABC है, ये ऊड़ा एड़ा है, ऐसे करते करते मैंने स्कूलिंग शुरू की। और स्कूल के टाइम पर पढ़ने जाते थे, होमवर्क मिलता था वो मैं करती थी। उसके बाद बोर्ड के एग्ज़ाम्स आ गए, 8th के बोर्ड के एग्ज़ाम आ गए, फिर 11th के बोर्ड के एग्ज़ाम आ गए। मैं बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी क्योंकि मेरे को यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, तो मैंने वो तैयारी शुरू कर दी। मैं पढ़ने में अच्छी थी और मैंने वो किया। सो साध संगत जी, हायर सेकेंडरी के एग्ज़ाम मीन्स 11th ग्रेड में पहुंच गई। 16 साल बीत गए, इनू समझण दा कोई समा नहीं मिला। समझण दा, समझने का मतलब अर्थ करने का नहीं, समझने का मतलब पढ़ के शुद्ध उच्चारण कर लेना, वाजे पे गा लेना या अखंड पाठ कर लेना नहीं। समझ दा मतलब इस खजाने नू मैं अपने जीवन ते अप्लाई किवें करना है, वो विचार करने का समय ही नहीं मिला। हम अपने आप को ठीक ही समझते हैं। जब ठीक ही समझते हैं तो मेरे को विचार करने की ज़रूरत ही क्या रह गई? ओवर कॉन्फिडेंस। जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, उस ओवर कॉन्फिडेंस विच असी कुछ भी सीखते नहीं हैं। मन जाने सब बात, मन जाने सब बात, जानत ही अवगुण करे, जानत ही अवगुण करे, काहे की कुशलात, काहे की कुशलात। हाथ दीप कुएं परे, हाथ दीप कुएं परे, मन जाने
सब बात, मन जाने सब बात। सानू भुलेखा पै जाता मुझे तो सब कुछ मालूम है, मैं ठीक ही हूं, अब मेरे को क्या समझना है। मन जाने सब बात, कबीर जी कहते जानत ही अवगुण करे। अवगुण बैड डीड्स नू कहते ने, बैड डीड्स बाद में करता है, पहले बैड डीड क्या कर रही, मेरे को सब कुछ पता है, मेरे को सब कुछ पता है इज द बिगेस्ट बैड डीड। सब तो माड़ा कर्म किया, इग्नोरेंस, मुझे सब कुछ पता है और मैं ठीक ही हूं। बस जानत ही अवगुण करे काहे की कुशलात। अब तू कुशल कैसे हो सकता है, हाथ दीप कुएं पर है, तेरे हाथ में दीवा और तू वो कुएं में गिर रहा है। मीन्स मुसीबत के टाइम तू फेल हो जाता है, मुसीबत के टाइम तू रिश्वत ले लेता है, गाली निकाल देता है, बुरा बोल लेता है, निंदा कर लेता है, नफरत कर लेता है। फेल हो गया ना, कुएं में गिर गया, मर गया, अमृत वेला नहीं रही। सो ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ रिलेट करके सोच रहे हैं। वो कहती है 11वीं के एग्ज़ाम आए, उनमें मैंने पढ़ाई की, मेरे अच्छे नंबर आए और मैं यूनिवर्सिटी में गई। अब यूनिवर्सिटी में तो वीर जी आपको मालूम ही है पढ़ाई भी ज़्यादा होती है और बच्चे अपनी मर्ज़ी से घर में आते हैं। पर मेरे को बोलते थे तुमने अच्छी पढ़ाई करनी है तो तुम टाइम पे घर आना, तो मैं घर भी आ जाती थी टाइम पे। और मम्मी बोलती थी खाना बनाना सीखो, मैंने खाना बनाना सीखा और कई चीज़ें मैंने सीखी। पर इसको समझ के अपने जीवन में जब कभी भी एक्सीडेंट हो उस टाइम कैसे अप्लाई करते हैं, नहीं सीखा वीर जी। उसके बाद मैं बड़ी हो गई, बड़ी होने के बाद मेरा रिश्ता हो गया और फिर आपको मालूम है शादी होने के बाद तो फिर टाइम मिलता ही नहीं है। शादी हो गई, शादी होने के बाद वीर जी बच्चे हो गए तो मैं बच्चों को संभालने लग गई। एक तरह मैं बच्चे संभालने लग पई, एक पासे मैं सस सोहरा नूं संभालने लग पई, टाइम नहीं मिल। वीर जी अब मेरी जवानी ढल गई है, मेरा पति भी मेरे साथ बात नहीं करता ढंग से, बच्चे बड़े हो गए हैं, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं, वो अपनी पढ़ाई करते हैं, वो अपने कंप्यूटर पर रहते हैं, वो अपने कॉलेज जाते हैं, वो अपनी जॉब पर जाते हैं। दिल्ली का बच्चा बेंगलोर जाता है, बेंगलोर का बच्चा बॉम्बे जाता है, बॉम्बे का बच्चा लंदन जाता है, लंदन का बच्चा न्यूयॉर्क जाता है, न्यूयॉर्क वालों का बच्चा कैलिफोर्निया जाता है। सो बच्चे अपना अपना चले गए। आजकल मैं ना एलोन फील कर दी हाँ वीर जी, मैं अपने आप को अकेला फील करती और मेरे को समझ ही नहीं आ रही, बड़ी उदासीनता चारों तरफ से घिरी है। वी ऑल आर वनरेबल, वी आर वनरेबल टू हैव दिस उदासीनता। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ देख रहे हैं चारों पासे डिप्रैशन के डॉक्टर्स और डिप्रैशन के मरीज़, डिप्रैशन ਦੀਆਂ दवाइयां ਵੱਧਦੀਆਂ जा रही हैं जिदे कारण लोग नशा करन लग पे ने। यह सारा कुछ इस करके हो रहा है कि हमने जब इसकी ज़रूरत थी उस टाइम हमने अपने बच्चे को विचार करने के लिए पास बिठाया ही नहीं, ना आप विचार की। जब हमारा बच्चा स्कूल से आया तो हमने बच्चे से पूछा, बच्चे बेटा सुनाओ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हमने विचार तो उसे की नहीं। जब बच्चा स्कूल से आया हमने बोला जल्दी जल्दी खाना खा लो, असी जाना है साढ़े बच्चे दिन डांस की क्लास है। सो बच्चे को डांस में ले जाना है, नहीं तो मेरे बच्चे की स्विमिंग की क्लास है, नहीं तो मेरे बच्चे की कराटे की क्लास है। साध संगत जी इनू कहते पे ने गुरु तेग बहादुर साहब अज दे शब्द विच, बीत जय है जन्म अकाज रे। काज होंदा है काम दे मुताबक परपसफुल जीना, अकाज है नकम्मे कम्मा च अन्न काए रातड़िया वाट दुहेली राम। अनफ्रूटफुल एक्सरसाइजिज विच समा जाया जा रहा है एंड यू आर नॉट रियलाइजिंग कि तेनू मुश्किल आने वाली है।
बहुत सारे नौजवान बोलते ने वीर जी मैं शादी से पहले बहुत शरीफ था, बहुत अच्छा था, हसमुख था, सारे बोलते थे हंसता रहता है। कुड़ी कहती है मैं हंसदी रहती सी, सारे कहते सी बड़ी। शादी के 6 महीने 8 महीने बाद मेरा झगड़ा शुरू हो गया, मुझे अपने पति से सास से डील करना ही नहीं आया, झगड़ा हो गया, पता नहीं उनमें उदास रहती है। सारे कहते क्या हो गया है, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स मिलते तेरी शक्ल को क्या हो गया है, बिकॉज आई डिड नॉट नो हाउ टू डील विद दैट। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜੂਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਨਾਗਾਗਸ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। 10 ਵਜੇ 11 ਵਜੇ 12 ਵਜੇ 1 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ डिफरेंट एज ग्रुप ਦੀਆਂ क्लासेस होनी चाहिए। तुम्हारी कल शादी होनी है, हाँ जिन जिन लड़कियों की कल शादी होनी है, कल मीन्स अगले 6 महीने में 1 साल में उनकी यहाँ पर गुरुद्वारे में क्लास होगी। हम उनको बताएंगे सास के साथ कैसे डील करते हैं। भाई साहब जी कैन डिस्कस विद दैम, सेमिनार कैन बी डन, वी कैन डिस्कस, वी कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस बिल्डिंग। अदरवाइज इस बिल्डिंग ते सोना चाड़ के धूफ अगरबत्ती करके टल खड़कान वास्ते नहीं है। यह स्कूल है, सतसंगत सतगुर चटसाल है, स्कूल है, और असी इत्थों सिखन आंदे गुरु पातशाह कोलों, और असी इहनूं सीखीए। इस करके साध संगत जी असी जदों शब्द के अर्थ समझते हाँ, असी अज दी लैंग्वेज विच मेरे अज दे जीवन विच ਇਹਦੇ अनुसार किवें जीना है असी उस तरह करते हैं। असी हिस्टरी नूं मिला के ਇਹਦੇ अर्थ नहीं करते हैं, किसी भी शब्द के अर्थ असी हिस्टरी के मुताबिक नहीं करते। क्यों? क्योंकि असी आवांगे सुनांगे काहे पू झगड़ा तो संग बाप के साथ झगड़ा हो गया था गुरु साहब के बेटे का, ये शब्द उनके लिए है, आओ जी मत्था टेको लंगर खाओ घर चलो, हमारे लिए तो है ही नहीं है। चाहे हमारे घर में मेरे बाप बेटे का झगड़ा है, वी कैन नॉट रिलेट दिस विद अवर सेल्फ। ਜਦੋਂ ਕਾਹੇ ਪੂ ਝਗੜਾ ਤੋਂ ਸੰਗ ਬਾਪ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਬਾਪ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ। ਪੂਤ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੰਤੋਖੀ ਕੰਟੈਂਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਝਗੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਟੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ चेंज आती है। हुण असी सोचना है मेरा जन्म जाया जा रहा, अकाज जा रहा, अनफ्रूटफुल सुपरफ्लूअस एक्सरसाइज जाया जा रहा। निस दिन सुन के पुराण किसी एक धर्म ग्रंथ की गल नहीं की जा रही। निस दिन होंदा दिन रात सुन के धर्म ग्रंथ। तू किसी भी मज़हब वाला है, तू धर्म ग्रंथ तो दिन रात सुनता रहता है। असी सारे सुनते रहते हैं ना, फिर भी हमारा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैनी बोधी झगड़ा चलता रहता है ना। अपने अपने धर्म ग्रंथ सुन तो लिए, पर एक दूसरे के साथ कैसे जीते हैं, अवल्ला नूर पाए कुदरत के सब बंदे कैसे जीते हैं। वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। असी एक पिता एकस के बारक का किवें जीवित है वो पता ही नहीं है। कह रहे ने देख जन्म जाया जा रहा है। निस दिन सुन के पुराण का मतलब है धर्म ग्रंथ तू दिन रात सुनता है। समझत न रे अजान, तू अनजान है और समझ नहीं रहा। काल तो पहुँचियो आन, काल की है असी उन्हें डिस्कस किया है। काल का मतलब शरीरक डेथ नहीं है। साध संगत जी तुसी घर जाके शब्द पढ़ना, जेड़े शब्द इच काल आवे, अंत काल आवे, उहदा मैना आज से 70 80 90 100 साल बाद शरीरक डेथ के बारे में नहीं है। काल का मतलब है मेरा वो वेला जिस वेले मैं इम्तिहान विच फेल हो जाता हाँ, मेरा वो वेला जिस वेले मैनू जम बिरती सतांदी है, मेरा वो वेला जिस वेले डीमन थॉट्स भैड़े ख्याल मंदे ख्याल गलत आदतां दी मैं प्रैक्टिस करता हाँ, मेरे उस वेले को काल बोलते हैं, अंत काल बोलते हैं, मरने की बेला बोलते हैं। काल तो पहुँचियो आन। जिमें मैं गल की थी कि वो बच्ची कहती है मैं तो बड़ी हसमुख थी, शादी के बाद पता नहीं क्या हो गया, पति से और सास से बात करनी नहीं आई, या मेरे को सिखाया था नम्रता से प्यार से बात करते हैं, पर मेरे पति या सास या ससुर ने मेरे को कुछ बुरा भला बोल दिया, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। बर्दाश्त करना है नहीं। सबर अंदर साबरी ताने में जालेन होण नजी खुदाए दे पेत ना किसे देन। मनु सबर सिखाया ही नहीं गया सी। I did not learn what is patience. Patience
ਸਬਰ ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ और पति ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ ਹੀ नहीं, पेशेंस ही नहीं। ला मेरे को बोल दिया, बात बात पे टोकती है बुढ़ी। साढ़े नाल लोग आके इंज गल करते हैं, मेरे को तो शर्म आती है लड़के की माँ को बुढ़ी कहने में, लेकिन वो बोल जाती है, हर टाइम टोकती है और बोलती बिल्कुल एब्यूजिव टोन में है, एग्रेसिव टोन में, बुढ़ी। और जिथे दरानी जिठानियां मिल जान फिर तो बहुत कुछ बोल दिया, आप सबको मालूम है। और कई जगह सस और ननान मिल जान तो ओदा जीना हराम कर देंदियां। यह सब कुछ की होया, काल आ गया, मुश्किल वेला आ गया, औखी घड़ी आ गई एंड डोंट नो हाउ टू डील विथ। काल तो पहुंचियो आन, कहाँ जै है पाजरे, उस वेले तू एस्केप नहीं कर सकता। यह शब्द दा राव है। शब्द दा राव की समझा रहा है, अगर तूने अपना वेला ना संभाला, अगर तूने ये वाली अक्ल ना ली कि जब मुश्किल आती है उस टाइम कैसे जीते हैं, तो तू अपना सारा जीवन तेरा पता कि बनता जाएगा। कबीर टाले टोले दिन गया, कबीर टाले टोले दिन गया, व्याज बढ़न तो जाए, व्याज बढ़न तो जाए, ना हर पजेओ ना खत फटेओ, ना हर पजेओ ना खत फटेओ, काल पहुँचेओ आए, काल पहुँचेओ आए। कबीर टाले टोले दिन गया, कबीर टाले टोले दिन गया, व्याज बढ़न तो जाए, व्याज बढ़न तो जाए। जैसे पैसे का व्याज, इंटरेस्ट से पैसा बढ़ता जाता है ना, ऐसे अगर तूने सच को ना समझने के कारण एस्केप किया ना, टालिया उन्होंने, टाला टोला दिन गया, व्याज बढ़न तो जाए। तेरिया भैड़ियाँ आदतां, तेरी गलत स्वभाव वाली हैबिट्स बढ़ती जाएंगी, मल्टीप्लाई होती जाएंगी। ਇਹਦਾ मतलब सानू वेले सिर समझना पेगा, वेला संभालना पेगा, ओदी प्रैक्टिस करनी पेगी। प्रैक्टिस दृढ़ करांदी है, साडा सुभाव पकदा जाएगा। कुट कुट मन कसवट्टी लावे, मन नू कुट कुट के आदत पानी पेगी। नहीं, मुझको उस टाइम गुस्सा तो चढ़ता है पर मैंने गुस्सा नहीं करना। उसने मेरे को दो गाली दी, मेरे को अंदर से आ रही थी पर मैंने नहीं देनी। क्यों? क्योंकि मैं इस ज़ुबान से बाणी पढ़ता हूँ। मैंने सीखा निंदा भली किसी की नहीं, मैंने नहीं करनी। साध संगत जी, बहुत सूक्ष्म ढंग दे नाल असी सब कुछ करते जाते हैं। मैं बचपन तो कीर्तन करता आ रहा, और बचपन विच मंगलवार, कदी बुधवार, डिफरेंट प्लेसिस, अपनी कॉलोनी, फिर दूसरी कॉलोनी, फिर दूसरी कंट्री, फिर होर कंट्री, लेडीज संगीत या बीबियां दा इस्त्री सत्संग होना। उन्होंने इस्त्री सत्संग विच कीर्तन करना, उन्हें उन्होंने कहना उन्होंने टाइम देना है, इन्हें कहना उन्होंने आंदा तो है नहीं। सूक्ष्म दी निंदा मेरे को आता है, पर अगर वो आ गई, अगर वो आ ही गई और उन्हें करना है, बट रामकली महला तीजा नादे कुंकार प्रसाद शुरू कर देता, भी पढ़ने नहीं देना, या कभी बाद बेनती चो भाई हमने को आदेश शुरू कर देता,
ताकि उन्होंने पढ़न नहीं देना। कितनी सख्त हौम है। गुरुद्वारे आंदे आ लोगों को पॉइंट आउट करते हैं, भैड़ा है, वो बुरा है, वो बुरा है, ग्रुपबाजी करते हैं, ए जट ने, पापे ने, रामगढ़िए ने, अरोड़े ने, ग्रुपबाजी करते हैं। अपने अपने वाकफ वालियां दे गुरुद्वारे जानते हैं। आजकल मैं गुरुद्वारे नहीं जाता क्योंकि अब मैं प्रबंधक कमेटी में नहीं हूँ, तब जाता था। अब प्रबंधक कमेटी वहाँ पर है या गुरुद्वारा है, गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ाएंगे। सो इस तरीके दे नाल ਅਸੀਂ अपना सारा निंदा करी जा रहे हैं, जीवन विच गड़बड़ करी जा रहे हैं, बीतदा जा रहा है। कबीर टाला टोला दिन गया ब्याज बढ़न तो जाए, ना हर भजियो। हर भजियो का मतलब हर 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 नहीं है, ना हर भजियो का मतलब है नहीं समझा। वेले नूं किस तरह संभाली दै, तू उन्होंने टालदा ही रहा। मैं टालती रही, बचपन में पढ़ती रही, पढ़न तो बाद एग्जाम सी, एग्जाम तो बाद बोर्ड का एग्जाम सी, फिर यूनिवर्सिटी सी, फिर प्रोजेक्ट सी, फिर जॉब सी, फिर विआह हो गया, फिर बच्चे हो गए, फिर वड्डे हो गए। इनू ही टाले टोले कहते ना। एंड वी आर चैंपियन हाउ टू टाला टोले। वी आर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट के टालना किस तरह, टालना किस तरह होता है। गुरपुरब आया, चलो ठीक है, सवेरे उठेंगे, प्रभात फेरी में ऐसे गा के बूंदी छोले खा के आ जाएंगे, टाल दिया। समझना नहीं है। अच्छा फिर गुरपुरब है, चलो हम नहीं समझेंगे, नगर कीर्तन निकालेंगे, ट्रक के ऊपर सड़क साफ करके ले जाएंगे, जगह जगह लोगों को बताएंगे ये सिखों के गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, ये सिखों को अच्छी जीवन जात सिखाते हैं, पर हम इसके बारे में विचार कोई नहीं करते हैं। इनू कहते ने नगर कीर्तन। बचपन ही असी ना दा सुनिया सी जलूस, आस्ता आस्ता ग्रेसफुल ना रख रहे हैं नगर कीर्तन। पर गेम क्या है, टाला टोला। सब कुछ असी टाला टोला करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं। कभी टाला टोला दिन गया ब्याज बढ़न तो जाए, नार भजियो, सच को नहीं समझा, नहीं विचारा, नार भजियो ना खत फटियो। तेरा लेखा खाता खत्म नहीं होएगा, और वधेगा। नार भजियो ना खत फटियो, काल पहुंचियो आए। काल मीन्स तू उस वेले आत्मक मौत मरेंदा है, मरेगा जिस वेले तेनू औखी घड़ी पैंदी है, जिस वेले तेनू प्रॉब्लम आती है बिहेवियर दे अगेंस्ट। सो धर्म सानू सिखाता है हाउ टू हैव आइडियल बिहेवियर, हाउ टू हैव फुल ऑफ मोरैलिटी वाली स्पिरिचुअल लाइफ। उन्होंने की कहते हैं, सरल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप, निर्मल कर्म कैसे बनाते हैं। निर्मल कर्म वाला शरीर कैसा होता है, निर्मल कर्म वाले आँखें कैसी होती हैं, निर्मल कर्म वाले कान कैसे होते हैं, ज़ुबान कैसी होती है। बोलने से पता लगता है तुम कितने पानी में हो। सो समझत न रे जान, काल तो पहुँचियो आन, कहाँ जह पाजरे रहाओ। अस्थिर जो मान्यो दे, तू अपने आप ਨੂੰ समझ रहा है जो मेरे को अवगुण ਹਨ, ए अस्थिर जो मान्यो दे, शरीर की बात नहीं चल रही है। मेरे ईवल थॉट्स, मेरे मंदे स्वभाव वाले ख्यालों वाली जो मैंने अपनी एंटिटी बनाई हुई है, मैं बख्शता नहीं हूँ, मैं किसी को माफ़ नहीं करता, मैं 2 की 4 सुना देता हूँ, हम तो मुंह पे मारते हैं सीधी। मैं तो कहनिया लाऊं गिट्टे पई पिट्टे। ऐसे लोग ईडियम्स यूज़ करते हैं और ऐसे लोग बोलते हैं। अपने अवगणी सुभाव वाला करैक्टर जिहड़ा संभाल संभाल के रखता है ना, ए जम तैनू, जम का मतलब डीमन थॉट्स, डीमन थॉट्स का मतलब है मंदे ख्याल। मनु एक एग्जाम्पल आ गया, मैं वो एग्जाम्पल दोबारा डिस्कस करना चाहता। तुसी कदी किसी टेप या टीवी ते साडे प्रोग्राम में देखा होगा। अमेरिका मेरा एक फ्रेंड है जसपाल सिंह, यह गल हूँ जसपाल सिंह मैनू सुना रहा है। आफ्टर आई वॉज डिस्कसिंग ऑन द स्टेज, आफ्टर द भोग, जसपाल मेरे को सुना रहा है, वीर जी आपकी बात से मैंने अपने सीन को रिलेट किया है। मैं क्या रिलेट किया है? कहता मैं न्यूयॉर्क में येलो कैब टैक्सी चलाता था। मैं क्या अच्छा? कहता मेरा खुला दाढ़ा, मेरी काली पग, मेरी पीली 50,
मैं ऊपर किरपान पाई हुई और मैं टैक्सी चला रहा सी और एक अमेरिकन ब्लांट गोरी ने मेरी टैक्सी को रोका, मेरी टैक्सी में बैठ गई, आउट ऑफ दी क्यू रोकया, मेरी टैक्सी ते बैठ गई। उन्हें मैनू कहा क्वींस जाना है या जिहड़ी जगह कही उत्थे जाना है। कहंदा वीर जी मैं गया, टोल तुसी सारे अजकल देखते हो, पहला इत्थे नहीं हुंदा सी, सो टोल ते पैसे पाने पैंदे ने। सो उत्थे पहला टोल हुंदा सी, ए एग्जैक्ट कैश पाने वाली फास्ट लेन होंदी है, फिर ए वाला $10 दो और $5 वापस लो, चेंज वापस लो, वो थोड़ी स्लो होती है। सो ये कहता है कि वो अमेरिकन गोरी मेरी टैक्सी में पीछे बैठ गई, टोल आया और टोल ते मेरे अगे वाला एग्जैक्ट कैश की लाइन च लग गया। असी टैक्सी वालों को कॉल होती है, वो एग्जैक्ट कैश की लाइन लग गया और डॉलर दे के तुड़ाने लग गया। कहता मैं कार का शीशा उतारिया और इंग्लिश विच गाल कड्डी, जो कुछ भी उन्हें गाल कड्डी होएगी। गाल कड्डन तो बाद कहता मेरी वारी आई और मैं टोल पे किया और मैं जिथे उसने जाना सी उस अमेरिकन नूं उतारिया। उतरन तो बाद वो मैनूं कहती है मैं तैनू $10 टिप देनी थी पर हुण मैं तैनू टिप नहीं देंगी। यानी कोई गल नहीं, वो ज़बरदस्ती नहीं होंदी। कहती नहीं, जस्ट लिसन मिस्टर सिंह, आई नो अबाउट यू, यू मीन्स आई नो अबाउट सिक्स, मनु सिखा बारे पता है, तो मैं तैनू तेरा ये वेश देखकर मैंने तेरे को धर्मी समझा और तेरी टैक्सी में बैठी, पर जब तुमने टोल के ऊपर उसको गाली निकाली मेरा सारा भरम उतर गया। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੈੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੰਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। सतगुर दे बाण नाल मैं नहीं मरिया, कबीर सतगुर सूर में बाया बाण जो एक लागत ही पोई गिर परिया परा करेजे छेक, मतलब मैनू नम्रता ते आई नहीं सी। सतगुर दे तीर नाल काश में मरिया हुंदा, पर मैं उहदी जम बिरती दे नाल, भैड़े ख्याल दे नाल, किसी दूसरे के बैड एक्ट के कारण मैंने गाली निकाली और उसने मेरे बारे में ऐसे बोला। इनू कहते ने अपने भैड़े ख्यालों दियां आदतां पालते रहना। अस्थिर जो मानव दे सो तो तेरो होए खे। जो खे हो जाते हैं ना असी साध संगत जी, मरण तो बाद खे नहीं, मरने के बाद वाली डस्ट की बात नहीं चल रही। जो असी खे होंगे हैं ना, खे हुई तो क्या पिया जो लागे अंग, असी लोकां नूं टॉन्ट करते हैं। जब असी खे हो जाते ना, खे मतलब होंदा मिट्टी, मिट्टी उड़ उड़ के आँखों में पड़ती है, नाक में पड़ती है, कानों में, कपड़े गंदे हो जाते हैं, कॉलर गंदे हो जाते हैं, मिट्टी। इस तरह असी लोकां दे सारे अवगुण फरोलते हाँ, लोकां दियां अखां च रिड़कते हाँ, लोकां नूं थां थां ते टोकते हाँ, लोकां वास्ते असी पुलिसमैन बन जाते हैं, जैसे मैं ही धर्म का ठेकेदार हूँ और सब जगह असी उन्हां वास्ते मुश्किल बना देंगे हाँ। सो तो तेरे होया खे, तू कीमती काम नहीं करेगा, क्यों ना हर को नाम ले, फिर तू क्यों नहीं सच को समझता, तू क्यों सच दी विचार नहीं करता। देख बीत जाए जन्म काज रे, सच दी विचार करया कर, क्यों ना हर को नाम ले, मूर्ख नहीं लाज रे, तेनू लाज नहीं है, तेनू अकल नहीं है। सो क्यों ना हर को नाम ले दा मतलब की होया, सच को तूने नहीं समझा। हाउ टू बिहेव एट द टाइम वैन डेथ कम्स, डेथ केड़ी आत्मक, भैड़े ख्यालों के अगेंस्ट मर जाना। क्यों ना हर को नाम ले मूर्ख ने लाज रे, राम भगत ये आन, छाड़ देता है मन को मान, तू मन का हंकार छाड़ दे अपने हिरदे विच। राम भगत का मतलब की होया, भगत का मतलब होंदा है मन, मन भगत होंदा, कोई इंसान भगत नहीं होंदा। मन नूं भगत कहते ने। जैसे मेरा ये सारा तन चलता है और इस तन नूं चलाउण वास्ते हार्ट ब्लड दिंदा है तो सारा तन चलता है ना, इस तरह जो मेरा मन अंदर वसदे रब जी की गल सुन के मेरे सारे अंगां नूं वंडदा है, उस अवस्था नूं भगत कहते हैं। राम भगत हिए आन, छाड़ देता है मन को मान, तू अंदरों रब जी की गल सुन, अपने एक एक अंग नूं फिक्सअप करन वास्ते अपने मन नूं सीधे राह पा,
और मन का हंकार छोड़ दे। नानक जन ये बखान जग में बिराज रहे। अल्टीमेटली यही ट्रुथ है और इस ट्रुथ के नाल तैनूं इस दुनिया विच रहना चाहिए है। जग का मतलब यह दुनिया भी होंदा है, जग का मतलब थॉट प्रोसैस भी होंदा है। तू अपने इस जीवन विच, अपने अंदर इस शरीर विच, अपने थॉट प्रोसैस विच इस तरह रहा कर कि मैंने विजडम को समझना है, उसको टालना नहीं है और समझ के अपने जीवन ते टुका के अपने आप को फिक्सअप करना है। फिर दोबारा मैं दस दियाँ, दुनिया में अनेकों धर्म कहलाते हैं लेकिन गुरमत नहीं मनती है। गुरमत इको ही धर्म मनती है, सरब धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम। गुरमत इको धर्म मनती है, उन्होंने कहते हैं एको धर्म दृढ़ सच कोई। वो जड़ा एक धर्म है ना सारी दुनिया का, वो धर्म मेरा जमा वाले ख्यालों वाला सुभाव चेंज करता है। धर्म रिलीजन चेंजेस माई बैड हैबिट्स। धर्म रिलीजन डज नॉट अलाउ मी टू चेंज अदर्स। नहीं तुम ठीक हो जाओ, तुम ठीक हो जाओ, तुम ठीक हो जाओ, ये गल भी बार बार रिपीट करनी पैंती है। एक कंट्री में गया, मैं उत्थे मिठा बोलण बारे, मिठ बोलड़ा जी हरसज्जन स्वामी मोहरा शब्द मैं डिस्कस किया और मिठा बोलण की एक्सरसाइज कराई। जदों प्रोग्राम ख़त्म हो गया, एक लेडी मेरे को लाई और आके कहती है, आज का आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा था, काश आज मेरे पति और सास ने सुन लिया होता। मैं उन्होंने बेनती की, तुसी सुनिया, आई थिंक यू हैव मिस्ड द बोट। तुहाडी बोट मिस हो गई क्योंकि तुसी सारे प्रोग्राम में यही सोचते रहे मेरी सास और मेरा पति गलत बोलते हैं, वो आज सुन लेते तो वो फिक्सअप हो जाते। डोंट थिंक टू चेंज अदर्स, थिंक मैं चेंज किवें होना है। हर पति पत्नी नू चेंज करना चाहता है, पत्नी पति नू चेंज करना चाहती है, नूह सस नू, सस नूह नू, माँ प्यो बच्चों नू। असी किसी नू चेंज नहीं कर सकते। जो चेंज नहीं होना चाहता, तुम घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हो, पिला नहीं सकते। किसी नू जबरदस्ती डंडे नाल कन पकड़ के, एक टाइम की रोटी ना दे के, रुस के, कैद करके, बुरा भला कह के चेंज नहीं कर सकते। जिन्हों अपने ते तरस आएगा ना, यार मैंने चेंज होना है, गलती और करता है, गुस्सा मेरे को चढ़ जाता है, मैं ऐसे ही अपना सिर दर्द कर लेता हूँ, मेरी ऐसी जुबान थिड़क जाती है। मेरी नानी जी ने एक एक्सरसाइज सुनाई, काका कच का गिलास है ना टुटन वास्ते बने हैं। जिस दिन खरीद के ले आए सी उस दिन समझ आ गई थी ये कांच का गिलास है, एक दिन टूटेगा। पर जिस दिन नौकरानी ने तोड़ा, मैं गुस्से ही नहीं हुई। मैं क्या, इसका हर अंदर 8 बंदे रहते हैं, 8 बंदे इस गिलास में पानी पींदे ने, मैं कल्ली क्यों इस नौकरानी नूं बुरा भला कहां। बस हाउ टू टैकल द सिचुएशन। मृत वेला के बदले अमृत वेला बना लेनी। ए अमृत वेला भुपिंदर सिंह के कहने ते नहीं बनेगी, भुपिंदर सिंह नूं कोई अकल नहीं है। ए मृत वेला तो अमृत वेला बना दी। हर सज्जन अमृत मेरा सतगुर समझाते ने, सतगुरु जी समझाते ने तेनू पल पल श्री राम नामा उचर मना, आगे जमदल बिखम कना, चारों पासे हर वेले ए जम वेला तेरे सिर ते खड़ी है, आत्मक मौत तेरे सिर ते खड़ी है। एंड हाउ टू टैकल, हाउ टू डील विद। जदों वो अकल आ जाती ना, उन्होंने अमृत वेला कहते हैं। सो अज के शब्द विच सानू गुरु पातशाह ने सिखाया, समझाया, हुण समझ आया जान ना दे, बीत जाए बीत जाए, अकाज ना जाया जान दे। हुण जितने सारे काम असी करते हैं, सारे काम करने ने, पर जे उन्होंने करद्या करद्या असी यह वाली जात नहीं ना सीख रहे तो अकाज हो जाएगा। अकाज का मतलब यह नहीं कि असी अपने सारे काम का छोड़ दिए, चौकड़ा मार के बैठ जाइए, माला फेरनी शुरू कर दिए, कार बार छोड़ दिए, जंगल ही चले जाइए, रिनाउंसिंग कर दिए, त्यागी हो जाइए, फक्कड़ हो जाइए, सोने को हाथ नहीं लगाते, माया को हाथ नहीं लगाते, स्त्री को हाथ नहीं लगाते, पैसे को हाथ नहीं लगाते। ये गल नहीं चल रही। सानू सिखाया उठत बैठत सोवत त्याइए, मार्ग चलत
ਹਰੇ ਹਰਗਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ, ਮੇਰੀ 10 ਤੋਂ 5 ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੌਸ ਆਏ ਨਾ ਆਏ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਦੇਖੇ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ करना है। जिस जिस जगह पर हैं उस जगह पर नम्रता से, प्यार से, पैशनेट होके करना धर्म है, अमृत वेला है। काज सफल हो गया। काज साडा नहीं है कि असीं गुरुद्वारे आके धीआं पुत्तर दे रिश्ते मंगने ने। काज साडा नहीं है कि पाठ रखाओ साडे घर विआह है। काज साडा नहीं है कि मेरा बच्चा पास हो जाए। काज साडा ये नहीं है कि मैनूं मकान बनाना ते लोन चाहिए। काज साडे ये सारे नहीं ने। साडा काज की है, मनु सुमत बख्शो, मेरा समा जाया जा रहा है, मनु विजडम दियो ताकि मैं डील करना सीख सका। इतनिया विचारा सांझ करते आने का भुला गलतियाँ हो गई होंगी, मैं खिमा जा चुका। हुण मैनू दसिया जाएगा जी इस हिसाब नाल, उस हिसाब नाल असीं क्वेश्चन आंसर लै सकते हाँ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹਾਊ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਐਂਡ ਵਟ ਇਜ਼ ਇਟਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। क्वेश्चन पंजाबी च बोलो। ਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਰਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਕਾਮ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਹ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਸਮਝਾਵਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਛੁਕ ਪੜੀਏ ਗਿਆਨ। ਔਰ ਗਿਆਨ ਕੀ है? ज्ञान डज़ नॉट मीन चाँद सूरज तारे कैसे होते हैं, हाथ की लकीरें कैसे होती हैं, पामिस्ट्री कैसे देखते हैं, अच्छा ज़ोडिएक साइन क्या होता है, तुम्हारा जेमिनाई है, उसका स्कॉर्पियो है, मेरा ये है। इन चीज़ों के ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते हैं। और ये धरती कब बनी थी, कैसे बनी थी, इस ज्ञान को भी ज्ञान नहीं कहते हैं। अच्छा फिर भगवान को कैसे प्राप्त करते हैं, ये भी कोई ज्ञान की बात नहीं चल रही। गुरमत का ज्ञान है, गुरमत का ज्ञान मैनू समझाओ मैं गलत कित्थे हाँ, नंबर 1। नंबर 2, अच्छा फिर जदों मैं गलत हाँ तो मैनू ठीक की करना चाहिए। अपनी बीमारी का डॉक्टर से डायग्नोज करवाना, डायग्नोज करा के जो उसने बताया वो वाली दवाई का अमल करना, उसको वरतना और वर्त के अपनी बीमारी को दूर करना, फिक्सअप करना। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ। ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਗੁਰਮਤਿ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਜੇਤੂ ਅਕ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਆਪ ਨੜੇ ਗਿਰਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਵੇਖ। सीख समझ मैं गलत कहाँ हूँ। बस ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੁਮਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਾ ਕੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ये काम ठीक हैं करने चाहिए, ये काम गलत हैं नहीं करने चाहिए। इस बुद्धि को, इस अकल को विवेक बुद्धि बोलते हैं, डिवाइन इंटेलेक्ट बोलते हैं। और विवेक बुद्धि के साथ हम टाइम पे गलत काम को ड्रॉप कर देते हैं और सिर्फ ठीक काम की प्रैक्टिस करते हैं। इंज ही आस्ता आस्ता करद्या करद्या मेरा मन फिक्सअप हो जाता है और मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नूं साधना, बैलेंस करना, प्रैक्टिस करना सीख जाता है। वी डोंट हैव टू वर्क ऑन एंगर, वी डोंट हैव टू वर्क ऑन लस्ट, वी डोंट हैव टू वर्क ऑन ग्रीड। रादर मेरा मन जिहड़ा सारी प्रॉब्लम दी जड़ है। गुरु नानक साहब ने सारी दुनिया नूं यह समझाया, मन नूं फिक्सअप करना है, काम क्रोध अहंकार बाकी सारे आपे
फिक्सअप हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी बच्चे, अपना नाम बोलो। Jasleen Kaur. जसलीन, हाँ जी। Sometimes we feel bewildered or confused regarding some parts of our life. It's like that we have to choose between right and right. So, राइट एंड राइट, yes. ओके। So, फॉर एग्जांपल किस तरह है वो? okay, fine. So, suppose a career option maybe. Okay, career option. Maybe I like to do something which is good for me, and on the other hand, I also like to do something which is equivalent good to me. So ਤੁਸੀਂ that ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ। okay, fine. what is right and what is right at your end, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਓ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਏ। ਰਾਈਟ, Okay, fine. So basically, I feel that I don't know myself. ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਮਾਈ ਸੈਲਫ। Yes, तो ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। I know that, but Okay. the thing is that the practice of Gurbani is damn difficult. It is. ਜੀ, But I feel like that I don't know myself ਓਕੇ, in the sense that I am indecisive. Like I am confused that what to opt and what to not. ਓਕੇ। Maybe both the choices are right for me, but the thing is that after taking a choice, I regret that why I took this. The second one would have been a better one. तो ਤੁਸੀਂ you can analyze more to choose between if they are very near, then 49 versus 51%, which one is better, then you choose 51%. If choosing the 49% because you are confused and later on you regret, then it's not going every day. Your career point is once in a life, right? ਸਾਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਦੇਗਾ। ਫॉर एग्जांपल you want to be a doctor, right? But when you became doctor and you could not achieve such numbers that you get the proper doctor degree, ultimately you became the nurse, for example. But doctor and nurse, they both have the same purpose, to fix up the patient, to help the patient. Okay, be a nurse, don't regret कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाई। ये बाहर की बातें हैं, ये आउटर है। इनर है, मेरी इंटेंशन है कि मैं मरीज ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਰੈਕਟ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਜਨਰਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਆਨਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਰੈਕਟ। ਔਰ you said about career, so career subject is not every day's problem. Career once you chose and you were wrong, and there you feel regret, that's it, now it's gone. Now wherever you are, work with your full passion, or if you can take the U-turn, have the other one, then try it. But we are talking about my habits, my traits, my characteristics. Dharam fixes that. Dharam does not fix up your career. ਧਰਮ ਇਹ ਅਕਲ ਦਿੰਦਾ ਕਰੀਅਰ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਹੈਬਿਟਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਬੱਚੇ। ਰਾਈਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ। And yes, I also wanted to ask you that how to find ourselves. Like मंतु जोत स्वरूप है अपना मूल पहचान. So how can we find ourselves? ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਬੀਤ ਜਾ ਹੈ, ਬੀਤ ਜਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। राइट। फॉर एग्जाम्पल एक लड़की बोलती है मेरे मम्मी पापा मेरे को हमेशा गुस्सा करते रहते हैं, मेरे मम्मी पापा हमेशा कहते हैं तू पढ़ती नहीं, जबकि मैं पढ़ती हूँ। मेरे मम्मी पापा कहते हैं तेरे नंबर कम आए तो रिश्ता नहीं होगा। राइट। सो मैं उस बच्ची को रिक्वेस्ट की थी, आप सही मैंने में जुडिशियसली अपना टाइम ठीक स्पेंड करते हैं, या आप सेल फ़ोन पे काम करते रहते हैं, या आप अपना इंटरनेट पे कुछ करते रहते हैं, या आप अपने फ्रेंड्स के साथ, या आप फिल्में देखते रहते हैं,
या आप नावल पढ़ते रहते हैं, है ना, या आप कहीं और किसी गॉसिपिंग में रहते हैं, आप लेट आते हैं, आप डांस में बिजी रहते हैं, तो आपके मम्मी पापा आपको कहेंगे कि तू टाइम ज़ाया ना करया कर। दे वुड हैव सीन यू वेस्टिंग योर टाइम, है ना। सो अपना मूल पछाड़ना है, डू आई वेस्ट माई टाइम, यस आई डू, देन मम्मी पापा का कहने का मेरे को माइंड होना ही नहीं चाहिए। यस दे हैव सीन आई वेस्ट एंड दे हैव पॉइंटेड आउट कि तू टाइम ज़ाया करती है। आप पे क्लियर हो जाएगा ना। अपने बारे पछाड़ना, वेयर डू आई एम रॉन्ग, सेल्फ ਨੂੰ पछाड़ना। क्या मैं लोगों से ऐसे बात करता हूं कि मैं सिविल इंजीनियर हूं, तो है पछाड़ना कि सिविल इंजीनियर इज नथिंग। क्या मैं ऐसे बात करता हूं मैं घर का मर्द हूं, मैं पति हूं, है ना। क्या मैं ऐसे बात करता हूं कि मैं घर दी नूं राणी हां, मैं मायके चली जाऊंगी सब देखते रहियो, यह कहना की है अपने गलत आदतां दा रोब दूसरिਆਂ ਤੇ ਝਾੜਨਾ, पर सैल्फ ਨੂੰ ना पछाड़ना कि मैं कितना बैलेंस्ड हाँ, मैं किस तरह काम क्रोध लोभ अहंकार वेले फिसल जाता हाँ, फेल हो जाता हाँ, डिस्टर्ब हो जाता, एजीटेटिव हो जाता, फ्यूरीअस हो जाता, है ना, उच्चा बोलन लग पैंदा, मनु दूजे की गल बर्दाश्त नहीं है। करेक्ट। अपने अवगुणा नू पछाड़ना, सैल्फ नू पछाड़ना। मन तू जो स्वरूप है अपना मूल पछाण, मन हारजी तेरे नाल है, गुरमती रंगवाण। जो गुरमती रंग माणन की अकल आती जाती है ना, उन्होंने कहते हैं मरण जीवन की सोझी हुई। मूल पछाणा ताश हो जाना, मरण जीवन की सोझी हुई, पता लगता मैं कैसे पल पल मरता हूं। अब मैंने नहीं मरना, अब मोए नाचनो ना आवे, मेरा मन मादरिया ना बजावे, हूं मैं किसी की ताल पर नहीं नाचता। राइट। एक लड़की जा रही है, उसको चार लड़कों ने कुछ बोला, तो वो उनकी ताल पर नाचेगी तो उनकी तरफ मुंह करके कुछ बोलेगी ना, पर मैंने सुना ही नहीं, मैं तुम्हारी ताल पर नाचती नहीं, चले गए। करेक्ट। बस दूजा कोई अपनी ताल बजाए और उस ताल ते मैंने नहीं नाचना, अपनी वर्थ पहचानना, अपनी ताकत माइट पहचानना, मन हारजी तेरे नाल, मरना नहीं है। राइट। तुम बुरा बोलते हो तो बोलो, हम नहीं बोलेंगे। अगर पति बुरा बोलता है तो ठीक है, तुमने ऐसे सीखा होगा, मेरी माँ ने नहीं सिखाया बुरा। और अगर पत्नी बोलती है तो ठीक है, तुम बोलते होगे। करेक्ट। अपनी वर्थ, अपना मूल पछाड़ना, अपने अवगुणा नू पछाड़ना ना, यह सारी धर्म की कला है। यह विवेक बुद्धि है, यह समाधि है, यह सिमरन है, यह दिन रात करना चाहिए। उठद्या बैठद्या वड्याइयां दी विचार करनी चाहिए कि मैं रब्बी गुणा दे नाल किवें जीना है। करेक्ट। थैंक्स फॉर शेयरिंग। लिखा है कि मतलब हर वेले सानू एकदम किसी को रूडली, और जैसे आपने अभी बताया कि अच्छी तरह से पोलाइटली हम्बली सबसे बात करने की, तो अगर मैं सपोज़ मैं अगर पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ और मुझे मेरे सामने बहुत ही मतलब मैं एक कैदी को पकड़ा है जिसने बहुत ही गलत काम किए है, रेप किए हैं, और एक्यूज़ मतलब वो एक्यूज़ है, उसने बहुत ही गलतियाँ करी है, और मतलब सारे उसने जुल्म करे हैं उसने, और बॉम्ब ब्लास्ट में मतलब वो बहुत ही बड़ा कैदी है। तो उसको भी उसके साथ सख्ती अपनाए। अगर और मैं सिख हूँ, अमृत छका है मैंने, मेरे को गुरबानी की समझ है, मेरे को समझ है कि गुरुजी ने बोला है कि मेरे को एकदम हम्बली और पोलाइटली और किसी से हाथ नहीं उठाना, गाली गलौज नहीं करनी। तो उस सिचुएशन में मैं कैसे, और ये बात होगी कि वो दोनों चीज़ मैं सही कर रहा हूँ। एक तरफ मैं वो कैदी को ठीक भी करना है, उसको उसकी गलती भी महसूस करानी है, और एक तरफ जो मैं गुरबानी की जो गुरबानी में लिखा है वो भी उसको समझ के उस। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? कीरत सिंह चौधरी। कीरत सिंह जी, आपने सवाल ये किया कि अगर कैदी ने बहुत जुल्म किए हुए हैं तो आप उसके साथ डील कैसे करें। हाँ जी। देखो, कैदी को जो जज सज़ा सुनाएगा वो कानून के मुताबिक होगी। करेक्ट। लेकिन कैदी के साथ अपनी ज़बान से और अपनी बॉडी से और अपनी आँखों से लैंग्वेज होती है, वो आप तो प्यार की बोल सकते हो उसके साथ। और अगर कोई
थर्ड डिग्री, जैसे बोलते हैं थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट होती है, और उनसे कुछ चीज़ें बातें निकलवानी हो कि अगर जैसे हम पिक्चरों में भी देखते हैं और जो रियल लाइफ सिचुएशंस है कि जिसमें उसके अगर और भी कोई प्लान्स होते हैं उनके कि उनको और कहाँ उनके साथीदार कौन है, वो सब उनकी बातें निकलवाने के लिए कैसे अभी- ट्रीटमेंट। अभी हमने ना, जैसे भाई साहब जी ने बोला विवेक बुद्धि, जो थर्ड डिग्री पे काम करते हैं, जब उनको धर्म की विवेक बुद्धि आएगी ना, तो उनको थर्ड डिग्री के टाइम पर भी उस कैदी के साथ बात करने वाली ना अकल आ जाएगी। हाउ टू डील विद सच कैदी, राइट। सिर्फ थर्ड डिग्री डज नॉट मीन सिर्फ मारना ही है, मार मार के बातें उगलवानी है, फिर और भी ढंग निकल आएंगे। पर अगर मैं वो इंसान हूँ जिसने उसको मारना है और उसे बातें निकलवानी है, तो मेरे को विवेक बुद्धि तो पहले आनी चाहिए ना। पहले मेरे पास ही विवेक बुद्धि नहीं है, मेरे को कौन सा जज पकड़ेगा? मैं भी तो कोई कोई जुर्म करता हूँ ना, सिर्फ वो तो पकड़ा गया है, करेक्ट। तो ऐसे जब हम विवेक बुद्धि लेंगे, बात चल रही है, मेरे को धर्म की कला सीखनी है, मेरे को ऐसी शार्पन डिवाइन इंटेलेक्ट दो कि मैं किसी इंसान के साथ कैसे डील करूं, ठीक है। और मेरा वो जॉब ही वो है और मुझे उससे बातें निकलवानी, तो साथ के साथ लो ना, फिर विवेक बुद्धि भी ले, फिर उस टाइम ये समझ आ जाएगी कैसे डील। तो सिर्फ इसका उसे कोई वो यार्ड स्टिक नहीं है भाई, तुमको वो ये बोलेगा तुमने ये बोलना, ये बोलेगा ये बोलना, ऐसे जनरलाइज नहीं है। मौके पे कैसे डील करें। एक दूसरा क्वेश्चन है हाँ जी। कि हुने तक मैं जो भी मतलब जिन्ना भी पार्ट किया कि मेरी जो भी एज है ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? कीरत सिंह। कीरत ਤੁਸੀਂ- सिंह। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? नहीं मैं नहीं करता। फिर एजम्पशन वाले क्वेश्चन ना करो, मेरे को भी सारे आंसर आते नहीं हैं। डोंट टेस्ट माई नॉलेज। आप तो बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन बना के ले आओगे, मेरे को सारे थोड़ा ना आते हैं। अरे मैं भी आपकी तरह ही गुरु जी से सीख रहा हूँ। हाँ जी। मुश्किल क्वेश्चन एज्यूम मत करो, आपके ऊपर रोज जो बीतती है वो वाला क्वेश्चन करो, है ना। तो ऐसे करने से क्या होगा कि हम भी ट्राई करेंगे, मेरे आंसर भी ज़रूरी नहीं है सारे ठीक हैं, हाँ जी। है ना। हाँ जी। आई एम नॉट एनी अथॉरिटी हियर, सिंपल जस्ट शेयरिंग विद यू, हाँ जी। ठीक है बच्चे। ਇਹ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ अच्छा, ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो निवल पोयंगम साधे पंच जना सो संग ना छुटके अधिक अंग बाधे। मेरा अहंकार और बढ़ गया कि मैंने इतना किया पर मैनू डील किस तरह करना है वो अक्ल आई नहीं। ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ कि ਤੁਹਾਡਾ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। मैं तो नहीं कह सकता तुमको उसका बेनिफिट होगा या नहीं, ठीक है ना।